Hello everyone, my name is Rasika and I welcome you to EduSolace. So students, today I'll be starting with the new topic of our verbs which is modal verbs. I hope everybody has gone through the earlier videos of verbs. Okay, so before starting with this session, I would request you all to please subscribe our channel and hit the bell icon so that you don't miss out any of our important notifications. So let's start with the session now. So students, as you all know, what are verbs? Yes, because I have already covered the linking verbs, helping verbs, main verbs. So today in this class we are going to deal with the modal verbs, which are also known as, you can say they are the part of our auxiliaries only, means the helping verbs. They come in the same category. Okay, but today we will learn their rule one by one. So the verbs like can, could, will, would, may, might, must, ought to. Okay, so these 10 are the modal verbs that we will study, and besides this there are two semi-modal verbs, okay, which are dare and need. So I will tell you the rules of these two semi-modal verbs as well, and the 10 modal verbs in today's class. Okay, so let's start with the session. So first of all, we'll talk about this first category, which is can and could. Okay students, तो चलिए फिर start करते can और could के साथ. So can and could shows you the ability to do something. क्या आपकी योग्यता है, क्या आप कर सकते हो. Now most of the students are confused whether could is a present tense or a past form of a can, or whether it is used in a future sense. So see, can is used in the present tense and this is clear. Could is a past form of a can, but it is not always used to show you the past tense. Okay, like in direct indirect voice, when we used to convert direct to indirect voice, we used to convert can to could. I can go there, he said that he could go there. So in direct indirect voice we use could to show the past tense, but it is not always true. Could is a past form of a can. It is used in the past tenses as well, but it also shows you the future probabilities or the future possibilities. Okay, so first is the ability to do something. So if I say I can do something, it shows my ability. I can swim, which means it is my ability to swim. Okay, it shows my ability to swim. I can lift that box. मैं ये बॉक्स उठा सकता हूँ, ये मेरी एबिलिटी है. And read this sentence. I could have lifted that box if you asked me to lift it. अगर तुमने कहा होता मुझे लिफ्ट करने के लिए तो मैंने वो लिफ्ट कर दिया होता. I could have lifted it. ठीक है ना. तो आप देख रहे हो could को कैसे अलग तरीके से यूज कर रहे हैं. इसमें सेंस चेंज हो जा रहा है सेंटेंस का. I can lift that box बहुत ही मैंने नॉर्मली बोला कि मैं ये बॉक्स लिफ्ट कर सकता हूं. I could have lifted that box या I could have danced if you compelled me to do so. ठीक है, अगर तुमने मुझे कहा होता तो मैं वो कर देता. ठीक है, एक तो could को ऐसे यूज करते हैं इन एबिलिटी, और दूसरा could को आप इन अ पास्ट टेंस में भी यूज कर सकते हो कि मैं ये काम पहले कर लेता था बट अब नहीं कर पाता हूं. फॉर एग्जाम्पल, आई कुड रन फॉर माइल्स व्हेन आई वाज यंग, नाउ आई कैन नॉट. मतलब मैं पहले बहुत माइल्स तक किलोमीटर्स रन कर लेता था बहुत लंबा, बट अब मैं उतना रन नहीं कर पाता हूँ. आई कुड स्टडी लेट इन नाइट व्हेन आई वाज यंग बट नाउ आई कैन नॉट. पहले मैं बहुत घंटों तक देर रात पढ़ लिया करता था बट अब नहीं. तो आप कुड को देख रहे हो, वैसे पास्ट टेंस में भी यूज कर सकते हो कि मतलब मैं ये काम पहले कर लेता था अब नहीं. और दूसरा आपने कुड को कैसे यूज किया, भाई अगर तुमने कहा होता तो मैंने वो बॉक्स लिफ्ट कर दिया होता. समझ रहे हैं आप. तो आप देखिए कुड को कैसे डिफरेंट सेंस में यूज किया जा रहा है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द वर्ड इज यूज्ड इन दैट कॉन्टेक्स्ट. तो आपको वो समझने की जरूरत है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज अ परमिशन टू डू समथिंग और अ रिक्वेस्ट टू डू समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, कैन आई गो आउट विद माई फ्रेंड्स. कैन आई गो आउट विद माई फ्रेंड्स, आप क्या कर रहे हो, परमिशन तो मांग रहे हो. ओके, कैन आई टेक दिस बुक, आप परमिशन मांग रहे हो. बट आप जैसे क्लासरूम में बोलते थे मैडम मे आई कम इन, तो वो क्या होता था, वो भी परमिशन होती थी, बट उधर आप मे का यूज करते थे. तो आपको याद रखना है, जब आप बहुत ही फॉर्मल वे में जब आप परमिशन मांगोगे तब आपको मे यूज करना है. बट इनफॉर्मल सेंस में
लाइक जैसे आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, फैमिली मेंबर से बात कर रहे हो, then for the permission you can use this word can as well. Otherwise in formal structure we should you always use may. ओके तो आप इधर फ्रेंड से नॉर्मली पूछ रहे हो कैन आई गो आउट विद माई फ्रेंड्स, आपने अपने पेरेंट्स से पूछा तो यू कैन यूज कैन. और परमिशन के लिए आप कुड जब यूज करते हो जब आप और ज्यादा पोलाइट वे में परमिशन मांग रहे हो, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करके परमिशन मांग रहे हो, ठीक है ना, ज्यादा रिक्वेस्ट जब आप कर रहे हो तब आप क्या पोलाइटली वे में तब आप कुड यूज करते हो. कुड आई गो आउट विद माई फ्रेंड्स प्लीज. तो आपने देखा कैसे सेंटेंस को मतलब बोलने का एक सेंस चेंज हो रहा है. ओके कैन आई गो आउट विद माई फ्रेंड्स, आपने नॉर्मली अपने पेरेंट्स से पूछा. कुड आई गो आउट विद माई फ्रेंड्स प्लीज, तो इधर आपने थोड़ा और स्ट्रेस दिया कि प्लीज मुझे जाने दो करके. ओके और इसी चीज को आपको परमिशन को और फॉर्मल स्ट्रक्चर में बोलना है, इंस्टीट्यूशंस में यूज करना है, कॉर्पोरेट्स ऑफिस में यूज करना है, तब आप मे का यूज करिएगा. ओके नेक्स्ट ऑफर, किसी को कुछ देना. आई कैन गिव यू माई स्कूटर फॉर 2 days और आई कुड गिव यू माई स्कूटर फॉर 2 days, मैं तुम्हें 2 दिन के लिए अपना स्कूटर दे सकता हूं. ठीक है. सजेशन, सजेशन देना. कैन वी डू अ ग्रुप स्टडी, और या फिर आप बोल सकते हो कुड वी डू अ ग्रुप स्टडी, दोनों में सेम है. पॉसिबिलिटी में बहुत डिफरेंस है कैन और कुड में, और इसको अगेन इंपॉर्टेंट है समझना. पॉसिबिलिटी में जब कोई पॉसिबिलिटी सर्टेन है, आप अश्योर्ड है कि वो होगा ही होगा, 100% चांसेस है, देन वी यूज कैन. एंड व्हेन इट इज नॉट सर्टेन, अनसर्टेन है, मतलब पॉसिबिलिटी है लेकिन मतलब 100% नहीं है, ठीक है ना, तब आप कुड का यूज करते हो. फॉर एग्जाम्पल यू कैन गेट इन्फेक्टेड इफ यू डोंट वॉश योर हैंड्स, मतलब बहुत अच्छे खासे चांसेस है कि भाई तुम्हें इन्फेक्शन हो जाएगा अगर तुम हाथ नहीं धोगे. यस द कोरोना कैन अगेन कम इन, कोरोना वापस से आ सकता है, ठीक है ना. सो ये क्या है, ये आपको बता रहा है सर्टेनिटी की ये हो सकता है. अनसर्टेन वे में आप क्या कुड यूज करते हो, यू कुड बिकम अ मिलियनर सून, कोई जरूरी नहीं है बन जाओ, लेकिन इसमें अनसर्टेनिटी, उसमें सर्टेनिटी है. यू कैन गेट अफेक्टेड बाय रेबीज इफ बिटन बाय डॉग, तुम्हें रेबीज से अफेक्ट हो सकते हो क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा चांसेस है, लगभग सर्टेन है. बट ये क्या है, ये अनसर्टेन है. ओके यू कुड पास दिस एग्जाम इफ यू स्टडी हार्ड, ठीक है, तुम एग्जाम पास कर सकते हो अगर तुम अच्छी मेहनत करो, अनसर्टेन है, तब कुड का यूज करें. कोई चीज जो ज्यादा सर्टेन है, हम लोगों को पता है, एज अ फैक्चुअल पता है, तब आप ज्यादा उसको सर्टेन वे में यूज करो. यस और कैसे इसका सेंटेंस आप यूज कर सकते हो, दिस कार कुड स्टे लॉन्गर इफ यू डू अ प्रॉपर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है ना. दिस कार कुड गो लॉन्गर, मतलब ये कार तुम्हारी अच्छे समय तक चल सकती है अगर तुम इसको अच्छे से रिपेयर मेंटेनेंस करके रखो. ओके दिस कार कुड लास्ट फॉर ए डेकेड इवन, तो मतलब अनसर्टेनिटी है लेकिन बता रहा है ऐसा हो सकता है. कोरोना का भी वैसे कोई श्योरिटी नहीं थी, उसमें भी आप कुड यूज कर सकते हो, बट जिस समय कोरोना आया था और जस्ट गया था उस समय लग रहा था कि आ सकता है, तब आप कैन कर सकते थे यूज. ठीक है, तो आप समझ रहे हो सेंटेंसेस को कैसे डिफरेंट सेंस में कैन और कुड यूज हो रहा है. सो आई होप आपको कैन और कुड का डिफरेंस भी समझ में आ गए कुछ सेंटेंसेस के थ्रू, और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं वो भी क्लियर हो गया. चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, विल एंड वुड, इसको कब यूज करते हैं. किसी चीज को आप विश कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, विल यू प्लीज लेंड मी योर बुक, नॉर्मली आप रिक्वेस्ट कर रहे हो फ्रेंड से, किसी से, क्या तुम मुझे अपनी बुक लेंड कर दोगे, आप विल का यूज कर सकते हो. किसी चीज को प्रेडिक्ट कर रहे हो, आप अज्यूम कर रहे हो, देन अगेन यू कैन यूज विल और वुड. आई थिंक दिस शॉप विल रिमेन क्लोज दिस ट्यूसडे, ये शॉप इस ट्यूसडे को बंद रहेगी. ठीक है. डिटर्मिनेशन फर्स्ट पर्सन, अगर आप आई का डिटर्मिनेशन फर्स्ट पर्सन के जैसे यूज करते हो तो आप विल यूज करो, और अगर सेकेंड पर्सन के लिए यूज करते हो तब विल यूज करो. ठीक है. अदरवाइज शैल, आई विल स्टडी हार्ड टू पास द एग्जाम दिस ईयर, मैं इस साल बहुत एकदम अच्छे से पढ़ाई करूंगा कि मैं पास हो ही जाऊं. ठीक है. हैबिट, शी विल स्पेंड हर संडे लिसनिंग ओल्ड सॉन्ग्स, ये उसकी हैबिट है तो यही करने वाली है, वो इस संडे भी पुराने गाने सुनकर अपना पूरा संडे व्यतीत कर देगी. शी विल गो आउट फॉर ए ड्राइव दिस संडे,
मतलब ये तो होगा कि हाँ वो जाएगी, और अगर हैबिट आप दिखा रहे हो तो विल का यूज कर सकते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ का यूज करके कंडीशनल सेंटेंसेस आपके बने तो उसमें हमेशा वुड आएगा, देखिए विल नहीं आएगा। और यहां पर पास्ट टेंस आया, इफ आई वन द लॉटरी आई वुड बाय अ न्यू कार। अगर मैं लॉटरी, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर मैंने लॉटरी जीती होती तो मैंने कार खरीदी होती, नहीं, इसका मतलब हुआ कि अगर मैं लॉटरी जीतूंगा, ये दिखा फ्यूचर टेंस में ही रहा है, अगर मैं लॉटरी जीतता हूं तो मैं नई कार बाय कर लूंगा। इफ आई वन द लॉटरी आई वुड बाय अ न्यू कार। इसको अगर आपको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करोगे? इफ आई हैड वन द लॉटरी आई वुड हैव बॉट अ न्यू कार। तो ये देखिए आपका पास्ट टेंस में हुआ कि अगर मैंने लॉटरी जीती होती ना तो मैंने नई गाड़ी खरीद ली होती। तो ये आपका पास्ट टेंस में दिखा रहा है, बट ये क्या कंडीशन दिखा रहा है फ्यूचर में, कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया ना, बन जाऊंगा तो मैं ऐसा ऐसा कर दूंगा। ऐसा बोलते हैं ना, अगर मैं मिलियनर बन जाऊंगा तो मैं ये घर खरीद लूंगा, मैं ये बंगलो खरीद लूंगा। तो ये फ्यूचर टेंस वाला है, इफ आई वन द लॉटरी आई वुड बाय अ न्यू कार। भले ही आपको ये सारे वर्ड्स पास्ट टेंस में दिख रहे हैं, बट ये फ्यूचर टेंस को कन्वे कर रहा है। पास्ट टेंस में ऐसे होएगा, उसमें हैड वन आएगा और इधर भी वुड हैव बॉट ऐसे यूज होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कंडीशनल टेंसेस के लिए ये एक रूल बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट देखते हैं शैल एंड शुड का यूज। टू आस्क द विल ऑफ पर्सन। शैल आई कम टू योर हाउस, आप उससे जानना चाह रहे हो क्या मैं तुम्हारे घर आ जाऊं। विच बुक शैल आई रीड, आप एडवाइस ले रहे हो कौन सी बुक्स मुझे पढ़नी चाहिए कि मैं पास हो जाऊं। ओके, टू एक्सप्रेस ड्यूटी और ऑब्लिगेशंस, कि ये काम आपको करना चाहिए, ये आपकी ड्यूटी है। वन शुड रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो शुड का यूज करिए। वी शुड बी ऑनेस्ट टू आवरसेल्व्स, वी शैल बी ऑनेस्ट नहीं ज्यादातर बोलते हैं, फॉर्मली कैसे बोलते हैं, वी शुड बी ऑनेस्ट टू आवरसेल्व्स, वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। और लेस्ट, लेस्ट के साथ भी क्या यूज करते हैं, शुड यूज करते हैं। स्टडी हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। लेस्ट का मतलब एक तरीके से आप मान लो अदरवाइज, जैसे अदरवाइज बोलते हैं वैसे ही, अच्छे से पढ़ाई करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। ठीक है, अदरवाइज के साथ वुड यूज करते हैं। अगर यहां पर अगर हमने लेस्ट की जगह अगर हमने अदरवाइज वर्ड लिखा होता, स्टडी हार्ड अदरवाइज यू वुड हो जाता, बट अगर अदरवाइज की जगह वर्ड आपका लेस्ट दिया है तो लेस्ट के साथ हमेशा शुड यूज होता है। तो अगेन ये इंपॉर्टेंट रूल ऑफ ग्रामर है जो आपको पता होना चाहिए, स्टडी हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। नेक्स्ट देखते हैं मे एंड माइट का यूजेज। सो इसको कब यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, इट मे रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है, आज ऐसा वेदर हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि कल बारिश हो सकती है। ओके, इट माइट रेन टुमारो, ये भी पॉसिबिलिटी बता रहा है, प्रोबेबिलिटी बता रहा है, बट देयर इज लेस चांसेस ऑफ हैपनिंग इट। ओके, इट माइट रेन टुमारो बट वी शैल नॉट कैंसल आवर प्लान्स, हमें अपने प्लान नहीं कैंसिल करने चाहिए, हो सकता है बारिश हो जाए। ओके, लेट्स पोस्टपोन आवर प्लान्स बिकॉज इट मे रेन टुमारो, चलो हम अपने प्लान्स को पोस्टपोन कर देते हैं क्योंकि कल बारिश हो सकती है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी लग रही, इट मे रेन टुमारो। ओके, देन ऑफ कोर्स परमिशन इन अ फॉर्मल सेंस, जो मैंने अभी आपको बता दिया था, जब आप किसी से परमिशन मांग रहे हो, मे आई कम इन प्लीज बोलते थे ना स्कूल में, मे आई बोरो योर बुक, तो जब ये थोड़ा फॉर्मल सेंस में जब यूज करना है आपको तब आप मे का यूज करिए, इनफॉर्मल वे में आप कैन का यूज भी कर सकते हैं और कुड का यूज भी कर सकते हैं। ओके, देन मस्ट, जैसे कैन का कुड हो रहा था, विल का वुड हो रहा था, मे का माइट हो रहा था, वैसे मस्ट का मस्टेड नहीं होता, मस्ट का कोई भी पास्ट टेंस नहीं फॉर्म होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो मस्ट को किसमें यूज करते हैं, यू मस्ट डू दिस, तो नेसेसिटी ऑब्लिगेशन बता रहे तुम्हें ये काम करना चाहिए, करना ही करना, यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम, तुम्हें अपना काम समय पर कंप्लीट करना चाहिए। यू मस्ट गो टू सी हर टुडे, तुम्हें आज उसे मिलने जाना चाहिए। किसी को एडवाइस दे रहे हो या रेकमेंड कर रहे हो कोई चीज, यू मस्ट सी दिस न्यू मूवी, मैंने देख कर आई है बहुत अच्छी मूवी है, यू मस्ट ऑल्सो गो एंड सी दिस मूवी। ओके, लॉजिकल सर्टेनिटी,
ट्रैवलिंग इन लोकल्स मस्ट बी हेक्टिक, मतलब आपको आप जैसे बोलते हो ना कि हाँ ऐसा होता है, मतलब ऐसा आजकल हो रहा है क्योंकि आपको पता है वो चीज कि भाई लोकल्स में ट्रैवलिंग करना हेक्टिक होगा भाई, ये हेक्टिक ही है भाई, ट्रैवलिंग में इन लोकल्स मस्ट बी हेक्टिक। तो आप उसको देख रहे हो लॉजिकल सर्टेनिटी वे में यूज कर रहे हो, आप अपना आप ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हो जो आपको पता है कि हाँ ऐसा ही होगा। शी मस्ट हैव स्लेप्ट बाय नाउ, आप भले ही अज्यूम कर रहे हो चीजों को बट आपको कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ माइंड यू आर श्योर कि ऐसा हो रहा है, ठीक है, कि भाई वो अभी तक सो चुकी होगी, वो अभी तक जा चुका होगा, ठीक है। मुझे ट्रैवलिंग इन लोकल्स मस्ट बी हेक्टिक, आपने और लोगों को देखा है, आपने और सुना है इधर उधर, तो आप अपना ओपिनियन फॉर्म कर रहे हो कि भाई जरूर लोकल्स में ट्रैवल करना बहुत हेक्टिक होगा, ठीक है, तब आप मस्ट का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑट टू, ठीक है, जैसे शुड होता है वैसे ही ऑट टू होता है, ठीक है ना, इसमें भी आपको मॉरल ऑब्लिगेशन की जैसे ऑट टू यूज हो जाता है। वी ऑट टू हेल्प हिम मतलब वी शुड हेल्प हिम, आप दोनों में कोई भी यूज कर सकते हो ऑल्टरनेटिवली। वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स और वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, दोनों का सेम मीनिंग हुआ, आप अगेन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो। नेक्स्ट एडवाइस देना, यू ऑट टू ड्राइव केयरफुली और यू शुड ड्राइव केयरफुली, तो आप देख रहे हो शुड और ऑट टू का ज्यादातर एक जैसे यूज कर सकते हैं हम लोग। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में शुड नहीं आता था, ठीक है, ऑट टू में प्रोबेबिलिटी यूज होती है। टैक्सेस ऑट टू बी रिड्यूस्ड इन द नेक्स्ट फिस्कल, एम्प्लॉयमेंट फिगर्स ऑट टू गो डाउन, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट कम हो सकता है, ठीक है। टैक्सेस ऑट टू बी रिड्यूस्ड, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे मेजर्स लिए हैं कि हो सकता है टैक्स रिड्यूस हो जाए न्यू फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है, तो उसमें आप ऑट टू यूज करते हो जो एक अलग है शुड से, शुड में प्रोबेबिलिटी नहीं आती है। अब इसमें डिफरेंस देखते हैं, यूज टू एंड नीड में क्या डिफरेंस है, पहले तो हम आपको बता दें, अब हम लोग यूज टू आपका सेमी मॉडल में नहीं, लेकिन नीड और डेड आपका सेमी मॉडल अब दो बाकी है, वो अभी हम देखेंगे। पहले यूज टू का देखिए, यूज टू क्या दिखाता है, डिसकंटिन्यूड हैबिट, मैं पहले ये करता था अब नहीं करता हूं, अब मैंने वो छोड़ दिया है। आई यूज टू प्ले बैडमिंटन मतलब नाउ नो मोर आई एम प्लेइंग बैडमिंटन, पहले मैं खेला करता था। ही यूज टू स्मोक अ लॉट, पहले वो बहुत फूका करता था अब नहीं, ठीक है। अगर आपको ये हैबिट दिखाना है कि वो कंटिन्यूइंग है, अभी भी वो कर रहा है, तो आप इसको कैसे बोलोगे, ही इज यूज्ड टू और इसमें प्लेइंग आ जाएगा, बैडमिंटन, ही इज यूज्ड टू प्लेइंग बैडमिंटन हो जाएगा। वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई V4, ING फॉर्म आ जाएगा, और साथ में इसमें इज यूज्ड टू होएगा। अगर आप कंटिन्यूड हैबिट दिखाते हो कि अभी भी करता है, तो आप इसको बोलोगे ही इज यूज्ड टू प्लेइंग बैडमिंटन, यहां पे बी फॉर्म आएगा, क्या आएगा, बी फॉर्म आएगा। और अगर आपको दिखाना है पास्ट टेंस में, पहले करता था अब नहीं करता है, इट इज अ डिसकंटिन्यूड हैबिट, तब आप क्या यूज करोगे, ही आई यूज टू प्ले बैडमिंटन, ही यूज टू स्मोक अ लॉट, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नीड टू। नीड टू आपको मैंने जैसे बताया ये आपका क्या होता है, सेमी मॉडल्स होता है। सेमी मॉडल्स क्यों होता है, क्योंकि ये कभी कभी क्या होता है एज अ मेन वर्ब भी काम करता है और कभी कभी एज अ मॉडल वर्ब यानी एज अ हेल्पिंग वर्ब भी काम करता है, ठीक है। तो आज हमारी क्लास किसकी है, मॉडल वर्ब की, तो पहले देखते हैं मॉडल वर्ब में कैसे काम करता है। तो मॉडल्स में ज्यादातर ये काम करता है टू शो योर नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जब आप क्वेश्चन पूछते हो या फिर जब आप नेगेटिव सेंटेंसेस फ्रेम करते हो, तब ज्यादातर एज अ मॉडल नीड का यूज करते हो। और साथ में जब भी आप देखोगे इसको नेगेटिव सेंस में यूज करोगे तो इसके बाद टू नहीं यूज करोगे, ठीक है। देखिए नीड आई गो देयर, क्या लिखा है, नीड आई गो देयर, क्या मेरी नीड है, मुझे वहां जाना चाहिए, नीड आई गो देयर, तो ये क्या बता रहा है, क्या मुझे वहां जाना चाहिए, मेरी नेसेसिटी है वहां जाने की, ही नीड नॉट गो देयर,
उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है, इट इज नॉट एन ऑब्लिगेशन ऑन हिम टू गो देयर। ओके, तो आप देख रहे हो उसके बाद टू नहीं हो रहा। अगर हम बोले आई नीड टू गो देयर, तो यहां पर नीड आपका एज अ मेन वर्ब काम कर रहा है, सो इट इज नॉट यूज्ड एज अ मॉडल। यहां पे मॉडल जैसे यूज हो रहा है, ठीक है ना। आई नीड टू गो देयर अगर आप पॉजिटिव में फ्रेम कर रहे हो देन इट इज यूज एज अ मेन वर्ब और साथ में टू भी आ रहा है। या फिर अगर आप इसको नेगेटिव में यूज कर रहे हो और डज या डिड लगा रहे हो तब भी ये एज अ मेन वर्ब काम कर रहा है, नॉट एज अ मॉडल। जैसे ये आई डिड नॉट नीड टू गो देयर, ये मॉडल नहीं है। आई डिड नॉट नीड टू गो देयर, मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं थी इसलिए मैं वहां नहीं गई। आई डिड नॉट नीड टू बाय सच एक्सपेंसिव क्लोथ्स फॉर मी, इसलिए मैंने नहीं खरीदे, सो आई डिड नॉट बाय। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये एज अ मॉडल यूज हो रहा है, मॉडल यूज नहीं हो रहा, मेन वर्ब यूज हो रहा है। लेकिन हमने दो सेंटेंसेस क्यों दिए हैं, क्योंकि इसके बीच में आपको डिफरेंस बताना चाहते हैं। आई डिड नॉट नीड टू गो देयर, सो आई डिड नॉट गो। इसका मतलब हुआ कि मेरे को वहां जाने की जरूरत नहीं थी इसलिए मैं वहां नहीं गई। इसका मतलब ये हुआ आई नीड नॉट हैव गॉन देयर, इसका मतलब मैं वहां गई तो बट मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं थी, काश मैं नहीं गई होती। आई नीड नॉट हैव गॉन देयर मतलब मैं वहां चली गई बट मुझे जाने की जरूरत नहीं थी। और आई डिड नॉट नीड टू गो देयर मतलब मैं वहां गई बट मुझे जाने की जरूरत नहीं थी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने थोड़े दो कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस रखे क्योंकि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो बताना चाहते थे। ओके, सो आई, ये है मॉडल्स की जैसे नहीं यूज हुए, ये हुए हैं मेन वर्ब की जैसे यूज। ठीक है, ये मॉडल्स के जैसे यूज हुए हैं, तो मॉडल्स में क्या है, टू नहीं आता ये अब आपका नेगेटिव सेंटेंसेस में या क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस में। और ये अफर्मेटिव जैसे नीड नहीं यूज हो पाएंगे। अफर्मेटिव जैसे यूज करने जैसे आई नीड टू गो देयर, तो फिर ये आपका मेन वर्ब जैसे नीड यूज हो रहा है। नेक्स्ट देखिए डेयर, डेयर करना, किसी को चैलेंज देना, और वेदर यू आर ब्रेव इनफ टू डू समथिंग। सो अगेन डेयर भी क्या है आपका, सेमी मॉडल है। क्या है, डेयर सेमी मॉडल है जो कि एज अ मेन वर्ब भी यूज हो सकता है और एज अ मॉडल वर्ब भी यूज हो सकता है। सो देखिए अगेन डेयर का हम लोग यूज ज्यादातर करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव के लिए, तो वो एज अ मॉडल यूज होगा। ही डेयर नॉट टच माई स्टफ, आगे देखिए टू नहीं आया इसमें, वो डेयर ना करे मेरा स्टफ छूने की। ही डेयर नॉट गो देयर, वो वहां ना जाए, ठीक है ना, कोशिश भी ना करे वहां जाने की। ओके, अगर हम बोले आई डेयर यू टू गो देयर, हम लोग ट्रूथ एंड डेयर गेम खेलते तो बोलते हैं आई डेयर यू टू गो देयर। सो यहां पे जो डेयर है ना वो एज अ मॉडल वर्ब नहीं यूज हो रहा है, एज अ मेन वर्ब यूज हो रहा है। तो आपको समझने की जरूरत है कहां पे डेयर का यूज एज अ मॉडल हो रहा है और कहां पे एज अ मेन वर्ब यूज हो रहा है। आई डेयर यू टू गो देयर, मैं तुम्हें डेयर कर रही हूं वहां जाओ, ये एज अ अफर्मेटिव सेंटेंस है, यहां पे एज अ मेन वर्ब यूज हो रहा है। मॉडल वर्ब में अफर्मेटिव नहीं बनेगा, ठीक है। और इसको अगर नेगेटिव में बनाना है और मेन वर्ब में, तो आई डिड नॉट डेयर टू स्पीक द ट्रूथ। इसका क्या मतलब हुआ, भाई मेरे में हिम्मत नहीं थी सच बोलने की। तो इसमें भी आपने देखा डू या डिड का यूज करके आया डेयर, तो ये आपका यहां पे डेयर मेन वर्ब जैसे यूज हो रहा है। अगेन ये दोनों सेंटेंसेस है जहां पे डेयर आपका मेन वर्ब जैसे यूज हो रहा है, और ये जो सेंटेंसेस है यहां पे आपका डेयर क्या है, एज अ मॉडल्स यूज हो रहे हैं। तो आप दोनों में डिफरेंसेस देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है। इंटरोगेटिव में कैसे यूज करेंगे, हाउ डेयर यू टच माई स्टफ, ओके, हाउ डेयर यू गो देयर, हाउ डेयर यू स्पीक टू मी सो रूडली। तो ये कैसे क्वेश्चनिंग फॉर्म में यूज कर रहे हो, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गए मॉडल्स के आज सारे रूल, कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है। एक बार फिर से आप सारे देख लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आई होप स्टूडेंट्स मॉडल्स क्लियर हो गया, पढ़ते रहिए ऐसे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।